I cannot bear your leaving. I cannot bear your leaving. There is no such sight in the whole world. Such a scene. Download لا حول ولا قوت الا باللہ. جو شخص روز پڑھے گا اس کی 99 بیماری دور ہوں گی. یا رزاقو، جو شخص 10 بار پڑھے گا انشاءاللہ اس کے گھر پر کبھی پریشانی نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. واہ بابا، زندہ باد زندہ باد. کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا. کیا بات کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. کیا ہوگا. امام حسین اور امام حسن کا بچپن کا عالم تھا. آپ دونوں نے تختی پر کچھ لکھا اور امام مولا علی کے پاس آئے اور کہا، بابا جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا. مولا علی کشمکش میں آ گئے اور فرمایا، اگر میں کسی ایک کو اچھا کہوں تو دوسرے کو تکلیف ہوگی. اس لیے مولا علی نے فرمایا، آپ دونوں اپنی امی جان کے پاس جائیں، وہی فیصلہ کریں گی. جب آپ دونوں حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو حضرت فاطمہ بھی کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھیں. انہوں نے فرمایا، آپ دونوں اپنے نانا جان کے پاس جائیں، وہی آپ کو بتائیں گے. جب آپ دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور وہی سوال کیا کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھاوٹ اچھی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا فیصلہ جبرائیل علیہ السلام کریں گے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک سیب لے کر آئے اور فرمایا، میں یہ سیب اچھال دوں گا، جس کے پاس یہ سیب گرے گا اسی کی لکھاوٹ اچھی ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیب کو اچھالا اور وہ 2 ٹکڑوں میں کٹ کر دونوں شہزادوں کی طرف برابر گرا. سبحان اللہ. اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے دستے نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے. جسے کھونے سے ڈرتے ہو اسے یہ لائنیں بھیج دو کہ پانے کی ضد نہیں، تجھے کھونے کا ڈر ضرور ہے. کبھی دور مت چلے جانا، باقی تیرا ہر فیصلہ منظور ہے. بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خامن شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت، بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن پاک سکھا کر جاؤ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. جانتے ہو اللہ کے نبی سخت تکلیف اور پریشانی میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں، آپ بھی پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جایا کریں گی. اور ہاں، پتے کی بات ہے، بات سننے کے بعد اس کو شیئر ضرور کر دینا. یار اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے نا، اور جب بھی آپ کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو آپ ہمیشہ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور نماز تو وہ عمل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ
खूबसूरत दुल्हन को देखता है और वो हैरत से पूछता है, अरे तुम कौन हो, सब छोड़कर चले गए, तुम कौन हो? तो वो दुल्हन कहती है, मैं तेरी नमाज हूँ, जब मेरा वक्त आता था तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, मैं दुल्हन की शक्ल में तेरा दिल बहलाने के लिए आई हूँ और क़यामत तक तेरा दिल बहलाती रहूंगी, और जब तू पुल सिरात से गुजरेगा तो तेरे आगे नूर बन बन करके मैं चलूंगी। अल्लाह, जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर है, मुझे दुनिया में रख, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाजा है और मेरे हक में बेहतर है, तो फिर मुझे ईमान के साथ ले जा। छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे, उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं, बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं? बच्चों ने कहा हाँ बताओ। वो एक ऊंचे कट्टे पर खड़े हो जाते हैं, हजरत बिलाल जैसे मस्जिद में अजान देते थे। ये बच्चा नकल करके बता रहा है। हुजूर वहीं से गुजर रहे थे, पीछे जाकर खड़े हो गए, सारे बच्चे सामने वाले डर गए, अबू महजूरा को नजर नहीं आए, वो अजान देते रहे। जैसे ही बच्चे इधर उधर डर के सिसकने लगे, सहमने लगे, अबू महजूरा ने पीछे मुड़ करके देखा हुजूर पाक थे, वो डर करके रोने लग गए, कहा माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो ऐसे ही बच्चों को बता रहा था। जाहिर सी बात है किसी की नकल करते हुए पकड़ा जाए, दूसरे लोग मार डालें उसे, बदतमीज बदअखलाक। नहीं, मेरे आका ने कहा आओ इधर, मस्जिद नबवी ले आए और ऊंचे टीले पर खड़ा किया, कहा जैसे नकल कर रहे थे फिर करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ बिलाल कैसी अजान देते हैं। अबू महजूरा ने जब देखा मैंने गलत नहीं किया था, अब खुशी के मारे अजान देने लगे। जानते हो वो 8 साल की उम्र के थे अबू महजूरा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान देने लगवाया, उस सहाबी की जिंदगी बदल गई। 60 साल तक मस्जिद हरम में अजान देते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता कर दे। फरिश्ते भी हैरान होके पूछेंगे ओ तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब ही नहीं हुआ। वो कहेंगे हम वो हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते। हजरत इमाम हुसैन जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे तो वो जो तीर जिस्म में खुबे थे वो और पेवस्त हो गए। गोया इस्लाम का दिल धरती के ऊपर है, कायनात राशे में आ गई, करबला की धरती का कलेजा कांप रहा है। हजरत उम्मे सलमा को हुजूर ने करबला की मट्टी दी, कहा जब ये खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। वो मदीने के अंदर ख्वाब देखती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम दाढ़ी मुबारक के अंदर गर्द मुबारक पड़ी हुई है और बाल उलझे हुए हैं, घबरा के उठ खड़ी हुई कि क्या माजरा है, और जल्दी से उस शीशी को देखा तो मट्टी रखी हुई थी, वो खून बन गया था। और आपने कहा अहले मदीना सुन लो, हजरत इमाम शहीद कर दिए गए हैं। इधर इमाम हुसैन खून और खाक के अंदर तड़प रहे हैं और आपके जिस्म नाजुक पर बर्छियों, तेगों और तलवारों के साथ जो है वो लोग वार कर रहे हैं। सनान बिन अंस आगे बढ़ा लेकिन सर काटने की हिम्मत ना पड़ी। मौली बिन यजीद आगे बढ़ा, वो भी पीछे हो गया। फिर शिमर आया और शिमर आपके जिस्म नाजुक के ऊपर बैठ गया। इमाम जल्दी अपनी पेशानी सजदे में रखी और अल्लाह की बारगाह में इमाम के आखिरी लफ्ज़ थे, मालिक जो तकदीर थी मैं उस पर राजी हो गया। मालिक तूने देखा मैंने सब्र भी किया, मुझे मालिक एतराज भी कोई नहीं, जो तेरा हुक्म था मैंने उसको तस्लीम भी कर लिया। मालिक तू बड़ा है। हुसैन सब कुछ लटा के मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है और इतना कुछ करने के बावजूद भी तेरे पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ है? आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका जब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। पर कुरान सजाकर सीनों में तूफान बसाकर जिस दिन हम मैदान में आएंगे। अगर ये 7 चीजें आपके घर में हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 चीजें अपने घर में जरूर रखो। नंबर 1 पर है जमजम वाटर। ये दुनिया का सबसे अफजल और बाबरकत पानी है जिसे हर मुसलमान पीना चाहता है और हम सब जानते हैं इसके फजीलत और फायदे कितने हैं। नंबर 2 पर कलौंजी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, इसलिए इसे जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर है खजूर। अगर अजवा है तो अफजल है, वरना आपको जो मिले उसे घर में रखें और यूज करें। नंबर 4 जैतून का तेल। कुरान में अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके फायदे और फजीलत कितने हैं। नंबर 5 पर है शहद। कई हदीस में आया है कि शहद में शिफा है तो इसे आप अपने घरों में रखें और यूज करें। नंबर 6 पर है सिरका, जिसे प्यारे नबी ने अपने घर में रखने के लिए कहा। नंबर 7 पर कुरान।
इस दफा मैं घर गया ना, अम्मी को बोलूंगा मेरी शादी करा दो, कम से कम कपड़े तो धुले हुए मिलेंगे। कौन करेगा आपसे शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? क्यों? मैं कोई मर्द नहीं हूँ? मेरे ठिकने कद पे मत जाओ, अंदर से पूरा हूँ। आपकी अम्मी को क्या फायदा होगा आपकी शादी कराकर? अम्मी को कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन मांजने पड़ते हैं और घरेलू काम करने पड़ते हैं। उसकी इन कामों से तो जान छूटेगी। बोलना यार अम्मी मान जाएगी, मुझे क्या पता मानेगी नहीं मानेगी। मैं तो फेल भाई के वलीमे में गया था ना, फेल भाई कहते हैं मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने ऐसे ऐसे घूंघट उठाया था। ज्यादा ड्रामे नहीं कर, कपड़े दो। पता है कितना खर्चा आता है शादी में? शादी लगाया हुआ है, कौन देगा आपको खर्चा? ऐसे हाँ बात सुन, हमारे मोहल्ले की गली गली में जो लूसी कुत्ते घूमते हैं ना, उनको एक कंटेनर में बंद करके चाइना को भेज देंगे। पता है कितने पैसे मिलते हैं? फी कुत्ता 1000 रुपए, यानी 100 कुत्ते 1 लाख रुपए। क्या ख्याल है भाई? तौबा तौबा, कहाँ से आते आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज? मुझे अंकल बस्साम ने कहा था ना, जल्दी मौलवी बन जा, लोग दाढ़ी टोपी का लिहाज करके रिश्ता दे देंगे। मैंने भी कहीं पढ़ा था अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। अगर अल्लाह ताला आपको तवील कद और डोल शोल जैसा जिस्म देते तो चार शादियां हो जाती भाई। तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वाला। आपको पता है अल्लाह पाक हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो ये वीडियो पूरी देखना और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखना। आपको पता है जब तुम बीमार होते हो तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से कहता है, जाओ मेरे बंदे के पास और उसे 3 चीजें लेकर आओ, उसकी भूख लेकर आओ, उसकी नींद ले आओ, उसके गुनाह भी ले आओ। और जब अल्लाह तुमको शफा देने का इरादा करता है तो फरिश्तों से कहता है, मैंने अपने बंदे को सेहत देनी है, तो इस तरह करो, 2 चीजें दे दो, उसे 1 चीज रहने दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, रब करीम क्या दे दूं? तो अल्लाह फरमाता है, उसे भूख भी दे दो। इतने दिन गुजर गए हैं, मेरे बंदे ने कुछ खाया ही नहीं, उसकी नींद भी वापस लौटा दो। कितने दिन गुजर गए हैं, मेरा बंदा सुकून से सोया ही नहीं, और गुनाह इधर ही रहने दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, रब करीम गुनाह क्यों इधर रहने दें? अल्लाह पाक फरमाता है, बीमारी की वजह से वो मैंने माफ कर दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया, और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है। एक बूढ़ी औरत का इंतकाल हुआ। लोगों ने उसे इज्जत के साथ दफना दिया। फरिश्ते आए, हिसाब किताब हुआ और अल्लाह ने उसे जन्नत की बशारत दे दी। उसकी कब्र में एक रोशन खिड़की खुली। उसने उस खिड़की से देखा तो जन्नत का नूर छाया हुआ था। वहाँ 2 औरतें बैठी हुई थीं, जो उसे अपनी तरफ बुला रही थीं। जब वह औरत उनके पास गई तो उसने एक अजीब मंजर देखा। एक औरत के सर पर एक परिंदा बैठा था जो अपने पंखों से उसे हवा दे रहा था, और दूसरी के सर पर वही परिंदा बैठा था जो अपनी चोंच से उसके सर पर मार रहा था। वह हैरानी से बोली, यह क्या हो रहा है? पहली औरत मुस्कुराई और बोली, जब मेरा शौहर काम से थक कर आता था तो मैं उसका सर दबाती थी और अपने हाथों से पंखा करती थी। अल्लाह ने उसी के इनाम में इस परिंदे की ड्यूटी लगा दी है जो अब मुझे जन्नत में सुकून दे रहा है। फिर उसने दूसरी औरत से पूछा, तुम भी तो जन्नत में हो, फिर यह तकलीफ क्यों? दूसरी औरत ने अफसोस से कहा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, रोजे रखती थी, इस वजह से मुझे जन्नत मिली। लेकिन जब मेरा शौहर काम से थका हुआ घर आता था तो मैं उससे बहस कर बीवी के अलावा किसी भी तरह अपनी ख्वाहिश पूरी करना हराम और नाजायज। बस अल्लाह ने कुरान में एक बता दिया तरीका कि जब ख्वाहिश पैदा हो बीवी नहीं है तो शादी करो, बस, और कोई रास्ता नहीं है।